Hi friends, welcome to my YouTube channel. I hope you will enjoy this session. Today we will start our chapter 6 Life Processes. Life processes are those essential activities which are performed by our body when we are not physically active. Even when we sit idle during sleeping, the maintenance job through the cells functioning has to go on. Some of the life processes of living beings are described below. First, that is nutrition. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं थ्रू द कंजप्शन ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. Respiration, the process of acquiring oxygen through the breathing and make it available to the cells for the process of breakdown of organic substances into simpler compounds is called respiration. Transportation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड इन ऑक्सीजन को हमारी बॉडी से वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करना फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. So here are some questions. Why diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism? कि बच्चा डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हाईली कॉम्प्लेक्स होती है. देयर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स. दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज दैट परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शंस of their body, such as intake of food and oxygen. Unlike unicellular organisms, multicellular organisms are not direct contact with outside environment. Therefore, diffusion can't meet their oxygen requirement. What criteria do we decide whether something is alive? Basically, something is alive, it all depends on that an organism also have some type of movements. It is not necessary that movement is visible to our naked eyes. So the presence of life processes is the fundamental criteria that can be used to decide whether something is alive or not alive. What are outside raw materials used by an organisms? These are food and oxygen, basically quite simple. What processes you consider that essential for the life processes? Life processes such as nutrition, respiration, transportation, excretions are essential for the maintaining of life. So we will here describe briefly. First we will start from the nutrition. So students, nutrition एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. हमें न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी को बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं. उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. वो जो रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जैसे ग्रोथ, रिपेयरमेंट. ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स होते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो लार्ज अमाउंट के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उन्हें बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज माइक्रो. द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड न्यूट्रिएंट. सो इट्स सिंपली क्वाइट सिंपली वी विल लर्न इट. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Auto means self and nutrition is quite simple, we all know. The mode of nutrition in which an organism prepare its own food, it is called autotrophic nutrition. Green plants, blue-green algae follow this mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition, a mode of nutrition in which an organism take its food from other organism, like non-green plants follow heterotrophic mode of nutrition. Okay. Next, autotrophic organisms able to produce the organic matter from simple inorganic matter, but they require a source of energy. Photoautotrophs harvest energy from light to produce the organic matter. Chemoautotrophs. Chemo means chemical. Use of inorganic reactions in the environment to drive the creation of organic matter. There are types of nutrition. Autotrophs and auto means self, trophs means feed. Use of simple inorganic substance, either light, that is photosynthesis, or chemical energy, that is chemosynthesis, to synthesis of food. There are the
the photosynthesis, these plants are known as photoautotrophs, and the organism which use chemosynthesis, they are known as chemoautotrophs. In heterotrophs, the organism obtains their energy intake and digestion of organic substance from other organisms like plants and animal and plant tissues. Heterotrophic nutrition is the typical nutrition in which these organism eats organic matter in other organisms, either alive as hunters or dead as scavengers. Saprotrophic mode of nutrition. Sapro means dead decaying. The organisms which obtain its food from dead decaying organic matters, they digest the materials by secrete some external enzymes like fungi, and many bacteria are saprotrophs. Parasites feed on other organisms without killing them. Heterotrophic nutrition can be further divided into two types like saprophytic nutrition or holozoic nutrition. Saprophytic nutrition, the organism secretes digestive juices in the food and the food is digested while still to be ingested. मीन्स पहले फूड का डाइजेशन होगा, आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म उस फूड को इंजेस्ट करेगा और वो जो डाइजेस्टेड फूड है फिर उसे ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करेगा. जो भी हमारे डिकम्पोजर्स हैं वो सभी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज also follow this mode of nutrition. Now holozoic mode of nutrition, it happens inside our body, the organism in which we firstly ingest the food and after that the process of digestion starts. But in case of saprophytic nutrition, first enzymes are released by the organisms on that food and the food is digested and after that our body will ingest it. So it is a major difference between the saprophytic and holozoic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition के अंदर कोई भी organism सबसे पहले उस food को digestion करेगा by releasing some digestive juices. While in holozoic nutrition, firstly organism उसे ingest करेगा ना, after that वो उसका digestion करेगा. Most of organism, human beings, holozoic mode of nutrition को perform करते हैं. We all follow holozoic mode of nutrition. Firstly we ingest the food and after that the process of digestion takes place. Okay. Now here explain photoautotrophic. Green plants are photoautotrophic or chemoautotrophic. Nitrogen fixing bacteria are chemoautotrophic. Holozoic, like animals, carnivores, are holozoic, saprofungi and bacteria. Parasitic, some protista, fungi and protozoa. These are the examples of parasitic nutrition. Now we will discuss plant nutrition. Green plant prepare their food. We all know green plant prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight, and sunlight provides energy. Carbon dioxide and waters are the raw materials and chloroplast is the site where food is prepared. So here it is the host, stem, roots, parasite, inflorescence. Photosynthesis, the process by which green plant prepare its food, is called photosynthesis. During this process, solar energy is converted into chemical energy and the formation of carbohydrates in the form of glucose is formed. Green leaves are the main site of the photosynthesis. The green portion of the plants contain chloroplast, which contain a pigment called chlorophyll. The whole process can be shown C6CO2 plus 6H2O. In the presence of light energy, with the help of chlorophyll, glucose is formed, that is C6H12O6 plus 6O2, that is oxygen. Means carbon dioxide और water की हेल्प से, सनलाइट एनर्जी की हेल्प से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सो हेयर आर सम स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डिस्कस्ड. फर्स्टली इन्होंने दिखाया है कि वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट से. ओके, नाउ ये वाटर का ट्रांसमिशन हुआ प्लांट की लीफ में. क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया. ओके, और सनलाइट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिया. ओके, तो अब यहाँ पे लीफ में क्या बना, फूड बना. ओके, स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया. नाउ इसे कन्वर्ट कर दिया, जो फूड है
जो एयर है, ऑक्सीजन जो कि फॉर्म हुई थी उसे हमने आउटसाइड कर दिया, और जो कार्बोहाइड्रेट शुगर जो फॉर्म हुई है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया स्टार्च के अंदर. सो प्लांट्स हमेशा फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके. और अगर हमें कभी भी स्टार्च का टेस्ट कंफर्म करना है तो बेसिकली वी विल टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. हम किसी भी स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस के ऊपर अगर हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर डार्क ब्लू हो जाएगा. सो इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट प्लांट. ओके. स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. Sunlight activates the chlorophyll, which leads to the splitting of water molecules. Okay, the hydrogen released by the splitting of water molecules utilized for the reduction of carbon dioxide to produce the सनलाइट एनर्जी क्या करती है? सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल को एक्टिवेट करती है जो कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देती है. उसी की वजह से जो हाइड्रोजन है, द हाइड्रोजन रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और वही हाइड्रोजन आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट में. ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी ऑल नो कि ऑक्सीजन साइड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का. कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट को फिर हम स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे इन द लीव्स और अदर स्टोरेज प्लांट. द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. जो वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिक्शन हो रहा है बिकॉज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. और बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो हम किसके लिए अंदर लेंगे? डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन बच्चा, इट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ओके, इट इज़ डिपेंड ऑन द लाइट. How do raw materials for the photosynthesis becomes available to the plants? Water comes from the soil, we all know, through the xylem tissue in roots and stem. वाटर को बच्चा सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगी रूट्स, और रूट से ये कहाँ जाएगा? जाइलम टिश्यू, और जाइलम टिश्यू इसको अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा. विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू ये प्लांट की लीव्स में चली जाएंगे और स्टेम्स में. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स किससे लेंगे? स्टोमेटा से, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है कि फोटोसिंथेसिस एक मेन वे है जिससे हम सोलर एनर्जी को मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स, जिसकी वजह से हम सोलर एनर्जी को डिफरेंट लिविंग बींग्स के लिए यूजेबल बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन द इकोसिस्टम. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड का मेन प्रोड्यूसर है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. वी ऑल नो, वी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. बिकॉज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट क्या कौन सी गैस को कंज्यूम करते हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन. और फिर उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. इस वजह से इंक्रीज जो लेवल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको प्लांट्स ही डिक्रीज करते हैं. ओके, सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल न्यूट्रिशन. ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं एनिमल्स. वी ऑल नो कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले फूड को इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट, सबसे पहले कोई भी इंजेक्शन से पहले डाइजेशन की प्रोसेस होगी. जैसे कि फंजाई हैं, वो किसी भी फूड मटेरियल्स पर पहले डाइजेस्टिव जूसेस को, एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से सेप्रोफाइट्स मोस्टली डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं. ओके, डेड रिमेन्स पर. Now we will discuss holozoic mode of nutrition. इन holozoic nutrition ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फर्स्टली इंजेक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, देन डाइजेशन की प्रोसेस को. तो जो holozoic nutrition है वो बेसिकली 5 स्टेप में होता है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ठीक है. So here are the differences mentioned here. Steps of holozoic nutrition. सबसे पहले ingestion, quite simple. Intake of food is called ingestion. Digestion, the breakdown of complex food into simple. Digestion means complex food को हमने simple food के अंदर break down कर दिया है. Okay.
उसके बाद एब्जॉर्प्शन मीन्स जो फूड हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया है उसे हमारे बॉडी की सेल्स क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। एसिमिलेशन मीन्स उस फूड को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, उससे एनर्जी बनाई जाएगी और उसे ग्रोथ और रिपेयरमेंट के प्रोसेस में यूज किया जाएगा। ईजेशन, इट इज द लास्ट स्टेप, और ईजेशन के अंदर जो रिमूव किया जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे जो हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, उसे हमारी बॉडी क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में बच्चा न्यूट्रिशन, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। अमीबा की सेल मेम्ब्रेन जैसे सूडोपोडिया, ओके, दैट इज उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इट इज इरेगुलर इन शेप। ओके, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड पार्टिकल्स एंड वाटर। जो फूड वैक्यूल है, सूडोपोडिया क्या करता है, फर्स्टली फूड को कवर कर लेता है, फूड को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, फिर उसे इनक्लोज कर लेता है, उसके साथ फूड और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो एंजाइम्स को रिलीज करेगा। उन एंजाइम्स की वजह से वो फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद वो सॉल्युबल मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे एसिमिलेट कर लेगा, उसे यूज कर लेगा और फाइनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा। नाउ वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन, द ह्यूमन beings are complex animal. We all know we have a complex digestive system. It is comprises of two types, that is alimentary canals and some accessory glands. The alimentary canal is divided in several parts, that is esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Salivary gland, liver, pancreas are the part of accessory glands. ओके, सो हमारी असेसरी ग्लैंड 3 हैं, जिसमें हम स्लाइवरी ग्लैंड को स्टडी करेंगे, लीवर को स्टडी करेंगे, पेनक्रियास को। इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारी बॉडी के ऑर्गन्स रह गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर टू आवर नेक्स्ट सेशन।